First night we talked about freedom from our sins. पहले रात को हमने पाप से छुटकारे के विषय में बातें की। Last night about freedom from worries. पिछले रात हमने चिंताओं से छुटकारे के विषय में बोला। This night it's the will of God that we meditate upon freedom from our sorrows. आज रात को हम अपने दुखों से छुटकारे के विषय में बातचीत करेंगे। Tonight he will wipe away all your sorrows, आज रात वो आपके तमाम दुखों को मिटा देगा, all your griefs. आपके तमाम शोक को मिटा देगा। Oh, he will wipe them away. वो उस सब को मिटा देगा। That's why he has brought you here. इसीलिए वो आपको यहाँ पर लेके आया है। You are not here by accident. आप यहाँ पर अकस्मात नहीं पहुँचे You are हैं। here by his divine will. आप ईश्वरीय इच्छा से यहाँ पर हैं So be of good cheer. और अच्छी खुशी से रहें। Today he will say goodbye to all your problems and sorrows. आज आपके तमाम दुख और मुसीबत को आप बाय बाय कहेंगे। Sorrow is a terrible thing. दुख एक भयानक विषय है। If you read Proverbs 15 and 13, अगर नीति वचन 15 के 13 आप पढ़ेंगे, it says, by sorrow of the heart, the spirit of a man or a woman is broken. वहां पर लिखा है दुख के कारण मनुष्य की आत्मा दब जाती है। Sorrow can break your spirit. और दुख के कारण आपकी आत्मा टूट जाती है। And the Bible says in Proverbs 18:14, बाइबल बताती है नीति वचन 18 के 14 में, who can bear a broken spirit? एक टूटे हुए आत्मा को कौन सह सकता है? Nobody can bear a broken spirit. एक टूटे हुए आत्मा को कोई सह नहीं सकता। When your spirit is broken, जब आपकी आत्मा टूट चुका है, your mind says, आपका मन बताती है, Dinakaran, you are finished. और सब कुछ समाप्त हो You गया, come to the end of the road. आप उस पार आ गए हैं। There is no hope at all in this world for you. इस संसार में आप आशाहीन हो जाते हैं। In Lamentation chapter 5 and verse 15, विलाप गीत 5 के 15 में the great prophet Jeremiah says, यिर्मयाह भविष्यद्वक्ता कहता है, Oh God, ओ परमेश्वर, our joy has come to an end. हमारा आनंद समाप्त हो चुका है। Our dance has been turned into a mourning. हमारा जो नाच है वो विलाप में बदल गया है। Our joy has come to an end. हमारा आनंद का समाप्ति हो गया है And our dance has turned into mourning. और हमारा नृत्य विलाप में बदल गया है। Several years ago, अनेक साल पहले in the United Kingdom, they built a beautiful ship called Titanic. यूनाइटेड किंगडम में एक बहुत बड़ा समुद्री जहाज टाइटैनिक का It निर्माण was हुआ called the world's most unsinkable ship. और विश्व का सबसे बड़ा जहाज के रूप में बताया गया। In the maiden voyage, it traveled from London to New York. उसके प्रथम यात्रा में लंदन से न्यूयॉर्क वो रवाना हुआ। There were 2,200 elite passengers. 2200 विशेष यात्रीगण उसमें थे। Movie stars, और बड़े बड़े अभिनेता millionaires, और बड़े बड़े करोड़पति big officials, और बड़े बड़े पद वाले big merchants, और बड़े बड़े व्यवसाय करने like वाले that all big people. और सब श्रेष्ठ लोग, As it was sailing in the middle of the sea, और जैसे ही वो जहाज समुद्र के बीच में था, it was a beautiful moonlight. और बहुत ही सुंदर चांदनी रात था। All the people assembled on the deck of the ship. सब लोग उस जहाज के मंच पर थे। There was great dancing and joy. वहां पर बड़ा नृत्य और आनंद का माहौल था। The orchestra was playing very wonderful music. संगीत का दल बहुत ही सुहावने संगीत गा रहे थे। Everybody was happy. सब लोग बड़े खुशी में थे। Suddenly the ship captain came there with a pale face. एकदम जहाज का कप्तान बड़े शोकित होकर आया। He said, sorry gentlemen, उसने कहा, मुझे अफसोस है श्रीमान sorry लोग, ladies, मुझे अफसोस है बहन लोग, I have a sad news for you. मेरे पास आपके लिए एक दुखदाई खबर है। The ship has hit an iceberg. ये जहाज एक बर्फ के टुकड़े से टक्कर खा चुका है Water is gushing into the ship. और पानी इस जहाज में प्रवेश कर रहा है। Any moment all of us may get sunk. किसी भी क्षण हम सब लोग डूब सकते हैं। Horror came upon them. लोगों के ऊपर बड़ा विपत्ति छा गया। Everybody began to wail and mourn. सब लोग चिल्लाने लगे, पुकारने लगे। The orchestra stopped its playing the wonderful music. गायक दल अपने सुंदर संगीत को बंद कर दिया। It began to play a wonderful hymn that is sung only in funeral services in the Christian home. उन्होंने उस गीत को गाया जो आमतौर से मसीह घरों में जब मौत होता है वो विलाप गीत गाते हैं। The more they played it, the more people began to mourn and cry. और जितना अधिक वो गीत गाने लगे, लोग शोकित होकर विलाप करने लगे। I'll sing one stanza from this psalm. उस गीत का एक लफ्ज मैं गाऊंगा। Nearer, my
my God, to thee, nearer to thee, him though it be a cross that raiseth me, still all my song shall be nearer, my God, to thee, nearer, my God, to thee, nearer to thee. Lord, draw me nearer. प्रभु मुझे नजदीक में ले चल। The time of my death is coming. मेरे मृत्यु का समय आ चुका है। The ocean is waiting to gulp me down. महासागर मुझे निगलने के लिए तैयार है। Hell is open. और स्वर्ग खुला है। I have lived a life of sin. मैंने पाप में जीवन बिताया है। But now you draw me nearer. लेकिन अभी तू मेरे पास तू ले चल। Within 1 minute, एक क्षण के अंदर dancing turned into mourning. वो नृत्य विलाप में बदल गया। Sorrow is terrible. और दुख बहुत भयानक है। But the Almighty God says लेकिन सर्वशक्तिमान परमेश्वर कहता है in John 16:20, यूहन्ना 16 के 20 में, your sorrow shall be turned into joy. तुम्हारे विलाप आनंद में बदल दिया जाएगा। Because I have the power to do it. क्योंकि मेरे पास सामर्थ्य है ये करने के In लिए। Jeremiah 32:27, यिर्मयाह 32 के 27 में he says, I am the Lord, the God of all flesh. उसने कहा, मैं हर प्राणी का परमेश्वर हूँ। Is there anything too hard for me? क्या मेरे लिए मुश्किल कोई भी बात है? No, nothing is too hard for him. नहीं, मेरे लिए कोई मुश्किल नहीं है। The Bible speaks about a man called Job. बाइबल एक अय्यूब करके व्यक्ति के बारे में बताती है। Tragedy after tragedy came to him. बड़े मुसीबत के पीछे मुसीबत उसके ऊपर आया। And in Job 6:1-3, और अय्यूब 6 का 3-1 में he cries out to God. वो परमेश्वर को पुकारता है। Oh God, look at my grief and my sorrow and calamity. मेरे विपत्ति और शोक के और दुख को तू देखता है। If they are weighed in a balance, और अगर वो नाप में तोला जाए, one side all my calamities, griefs and sorrows are put. एक तरफ अगर मेरे दुख और विलाप और क्लेश डाल दिया जाएगा, On the other side, if all the sands in the whole seas of the whole world is put, अगर पलड़े के दूसरे ओर पूरे संसार में बालू डाला जाएगा, my grief shall weigh down. मेरा जो दुख का पलड़ा भारी होकर नीचे जाएगा, My sorrow will be greater. मेरा दुख उससे बहुत बढ़कर होगा। The Bible says, बाइबल बताती है God appeared to him परमेश्वर उसके लिए प्रकट हुआ and began to console him and comfort him, और quoting उस- his mighty power. उसके सामर्थ के बल पर उसको आश्वासन और तसल्ली दिया। In Job 41 and verse 22, आयुब 41 अध्याय के 22 पद में God speaks about a particular wild beast called Leviathan. परमेश्वर एक जंगली पशु लेवियाथान के बारे में बोलता है। He says, Job, और उसने कहा, I आयुब, made this animal. मैंने इस पशु का बनाया है। Its strength is in its neck, उसका जो बल उसके गर्दन में है, so it will never go under any weight. और इसलिए कोई भी दबाव के नीचे वो नहीं झुकेगा। On the other hand, और दूसरे तरफ पर wherever it may go, जहां कहीं वो जाएगा, before this wild beast, इस भयानक पशु के सामने every sorrow shall be turned into joy. प्रत्येक दुख खुशी में बदल दिया जाएगा। Leviathan, this wild beast, has so much power and strength, it can turn any sorrow into joy. ये लेवियाथान जंगली पशु में इतना सामर्थ है कि किसी भी दुख को वो आनंद में बदल डाल सकता है। If a wild beast created by me can turn any sorrow into joy into this world, can I not do it for you? अगर एक जंगली पशु जिसका निर्माण मैंने किया अपने दुख को आनंद में बदल सकता है, क्या मैं सक्षम नहीं हूं कि ये काम तेरे लिए करूं? My father was in the Second World War. मेरे पिताजी दूसरे विश्व युद्ध में थे He was sent to the German front. और वो जर्मनी के मोर्चे पर भेजे गए। His army, the 8th army, was supposed to be the most toughest army. और उनका सेना जिसमें वो थे वो बहुत ही एक सामर्थी सेना माना गया। When McGrath, a Scottish man, a mighty warrior,
headed that army. और उस सेना का सेनापति था एक स्कॉटिश व्यक्ति मैग्राफ। When the ship landed in Italy, जब उनका समुद्री जहाज इटली के तट पर पहुंचा when the whole army disembarked, और सारे सेना लोग वहां से उतर गए, the people in Italy came running to see them. लोग दौड़कर उनसे मिलने के लिए आए। When they learned they have come to liberate Italy from Germany, जब उनको पता चला कि इटली और जर्मनी को आजाद करने के लिए लोग आए हैं, their sorrow became joy. उनका दुख आनंद में बदल गया। They jumped and danced. वो खुशी से नाचने लगे, गाने लगे। They began to offer so many things for the soldiers to eat. वो सिपाहियों को अनेक भेंट देने लग गए। My precious brother, मेरे अजीज भाइयों, one Scottish army general could do it. एक स्कॉटिश का सेनापति के द्वारा ये संभव था। Tonight God is with us. आज रात परमेश्वर हमारे साथ God है। says, परमेश्वर I कहता है, am the Lord, the God of all flesh. मैं सब प्राणी का परमेश्वर हूँ। Is there anything too hard for me? क्या मेरे लिए कोई भी बात मुश्किल है? He is asking you that question. वो सवाल आज रात आपसे पूछता है। Probably your heart is broken. कितना भी आपका हृदय टूट चुका हो, You are weighed down with sorrow. आप दुख से बड़े खेदित हैं, Tonight it must leave you. आज रात उस दुख को छोड़ना है। It will leave you. जरूर वो आपको छोड़ेगा। He will give you His joy, वो आपको अपना आनंद प्रदान करेगा, His happiness. उसकी खुशी। In the Bible He has said, बाइबल में उसने लिखा है, I am going to come down into this world. मैं इस पृथ्वी पर उतर आऊंगा। The Almighty God, सर्वशक्तिमान the परमेश्वर, invisible God, वो अदृश्य परमेश्वर, He says, वो कहता है, I am going to come into this world. मैं इस पृथ्वी पर उतर आऊंगा। In 1 Timothy chapter 3 and verse 16, पहला तिमोथी 3 का 16 में, Matthew 1:23, मती 1 का 23वीं पद में, Romans 9 and verse 5, रोमी 9 के 5वीं पद में, 2000 years ago He did come into this world. 2000 साल पहले वो इस पृथ्वी पर आया। In flesh and blood He came. इस मांस और लहू में वो आया। Before coming He said these words, इससे पहले कि वो आए, इसने वो शब्द कहा, I am coming to give you the oil of joy instead of mourning. और विलाप के जगह मैं आनंद का अभिषेक तेल देने के लिए तुमके पास आता हूँ। Are you sorrowful? क्या आप दुखी हैं? Are you full of grief? क्या आप दुख से खेदित हैं? He says, वो कहता I है, am coming into this world to give you oil of joy instead of mourning and lamentation. मैं संसार में इसलिए आया ताकि दुख के बदले तुम्हें आनंद का तेल से अभिषेक करूं। Let us quickly see how He turned sorrow of the people into joy in His times. हम जल्दी से देखेंगे कैसे उसके समय में उसने लोगों के दुख को उसने आनंद में बदल दिया। When He walked on the face of this earth as a man called Jesus. जब यीशु मनुष्य के रूप में इस पृथ्वी पर चला फिरा। If you read Luke chapter 7, अगर लूका 7वीं अध्याय आप पढ़ेंगे, 37 and 38, 37 और 38वीं पद, you will find the most sinful woman crying at His feet. आप एक पापी स्त्री को उसके चरणों में रोते हुए देखेंगी। The Bible says बाइबल बताती she है was crying so much. वो बहुत बिलक कर रो रही She थी। could wash the feet of Christ with her tears. वो यीशु के पांवों को आंसू से धो सकती थी। The Lord Jesus was moved with compassion. प्रभु यीशु तरस से भरपूर हो गया And He said, My daughter, और उसने कहा, मेरी your बेटी, faith has saved you. तुम्हारा विश्वास ने तुम्हें बचा लिया, Go in peace. शांति में चले जाओ। I am turning your mourning into peace and joy. मैं तुम्हारे विलाप को आनंद और खुशी में बदल रहा हूँ। He will do that for you tonight. आज रात वो यही काम आपके लिए भी करेगा। On the 11th February 1955, 11 फरवरी 1955 में, when I was just 20 years old, जब मैं केवल 20 साल का उम्र का था, I was running towards the railroad, मैं एक रेल पटरी की ओर दौड़ रहा था waiting for the express train to come. और एक्सप्रेस गाड़ी के इंतजार में दौड़ रहा था। I wanted to jump before the train मैं उस गाड़ी के आगे कूदना चाहता so था that the engine would crush me to death. ताकि वो इंजन से मैं कुचला जाऊं। So much of sorrow, इतना दुख से मैं so परिपूर्ण, much of grief, इतना दुख से खेदित था unemployment, और बेरोजगारी था failure in studies, और पराजित हो गया पढ़ाई में sickness, और बीमारी poverty. और कंगालपन। Oh, I had no peace in my heart. मेरे हृदय में कोई शांति नहीं I था। said the best way to end this sorry mess is suicide. मैंने सोचा कि इस दुख का अंत का उत्तम तरीका है आत्महत्या। God was watching me. परमेश्वर मुझे देख रहा My था। uncle was a policeman. मेरे अंकल एक पुलिस के सिपाही थे। He came to me. वो मेरे पास आए। He began to talk to me about God's love.
परमेश्वर के प्रेम के बारे में मुझसे बातचीत करने लगे। He said, son, God loves you. उसने कहा, बेटा, परमेश्वर आपसे प्यार And करता he है। told me about how he came into this world, और उसने कहा परमेश्वर इस जगत में कैसे आया, how he walked on the face of this earth as a person. कैसे एक व्यक्ति के रूप में इस संसार में वो चले फिरे, Finally, how he gave himself on the cross for us. और अंत में कैसे उसने कलवरी क्रूस पर अपने आप को हमारे लिए दे दिया। 1 Peter 2:24 says, पहला पत्रस 2:24 में लिखा है, every sin was laid upon him. प्रत्येक पाप उसके ऊपर लादा गया। Matthew 8:17 says, मत्ती 8:17 में लिखा है, every sickness was laid upon him. प्रत्येक बीमारी उसके ऊपर डाला गया। Galatians 3:13 says, गलाती 3:13 में लिखा है, every curse was laid upon him. प्रत्येक श्राप उसके ऊपर डाला गया। Hebrews 2:9 says, इब्रानी 2:9 में लिखा है, he tasted death for everyone. उसने हमें से हर एक के लिए मृत्यु को चख The लिया। bitterness of death was laid upon him. वो मृत्यु का कड़वाहट उसके ऊपर लादा गया। He took it gladly. उसने खुशी से लिया And he shed his blood and died. और उसने अपना लहू बहाकर मर गया। But the Bible says लेकिन बाइबल बताती है, in 1 John 1:7, पहले यूहन्ना 1:7 the में, blood of Jesus Christ can cleanses us from all sin. यीशु मसीह का लहू हमें सब अपराधों से शुद्ध करता है। My uncle told me, मेरे अंकल ने बताया, go home, खुशी से घर जाओ, cry to God, परमेश्वर से ask पुकारो, him to show your own heart. उसको बोलो कि आपके हृदय को बताए। I went home, मैं घर गया knelt down. और घुटनों के For बल the हो first गया। time in my life, जीवन में पहली I बार cried out to God. मैं परमेश्वर के पुकारा। If there is a God, अगर परमेश्वर है, as my uncle says, जैसे मेरे अंकल बोल रहा है, oh God, come down. परमेश्वर उतरा, Show me what is wrong with me. आप दिखाए मेरे जीवन में Why गलत I क्या, don't have peace. मेरे जीवन में शांति Why नहीं I है, have endless trouble. मेरे जीवन में दुख क्यों है। And he came. और वो उतर आया। My heart was convicted. मेरे हृदय बोधवान हो I गया। saw my whole past, मैंने अतीत को देखा, 20 years of my past life. 20 साल के अतीत जीवन को देखा, Every little sin I committed. मेरे जीवन के प्रत्येक छोटे पाप, Oh, I saw them. और ये सबको मैंने I देखा। cried and cried. मैं रोता गया, रोते गया, 4 full hours I cried. और 4 घंटे में निरंतर रोते गया। And said, Lord, forgive me. मैंने कहा, प्रभु क्षमा कर, Give me a new life. मुझे नया जीवन दे, Give me one more chance in this world. इस संसार में एक और मौका मुझे दे। Wash me, Lord, with your blood. प्रभु अपने लहू से मुझे धो दे। Great peace came. एक बहुत बड़ा शांति A आया, wonderful peace came. एक अद्भुत शांति आया। I became so happy inside. मैं बहुत ही खुश हो गया। A real joy came. एक वास्तविक आनंद आया। My sorrows were turned into joy. मेरा दुख आनंद में बदल गया। मेरे कारण घायल हुआ, मेरे पापों को उठा लिया। मेरे कारण घायल हुआ, मेरे पापों को उठा लिया। जैसे माता संभालती है, वैसे यीशु संभालेगा। जैसे माता, जैसे माता, जैसे माता संभालती है, वैसे यीशु संभालेगा। जैसे माता संभालती है, वैसे यीशु संभालेगा। सीने से लगाएगा, चिंता सब हटाएगा। सीने से लगाएगा, चिंता सब हटाएगा। जैसे माता संभालती है, वैसे यीशु संभालेगा। जैसे माता, जैसे माता, जैसे माता संभालती है, वैसे यीशु संभालेगा। जैसे माता संभालती है, वैसे यीशु संभालेगा। Hallelujah. हालेलुया। Oh, he's a wonderful God. वो कितना अद्भुत परमेश्वर We'll है। give him a better clap.
और उसके लिए और जोरदार थाली बजाएंगे। Hallelujah. हालेलुया। He gave me a new heart. उसने एक नया हृदय मुझे दिया। All my sorrows went away. मेरे तमाम दुख मिट गया। A great faith came into my heart. एक बड़ा विश्वास मेरे अंदर That जाग उठा from now on he will take over. कि अब से वो संभालेगा। I had great peace in my heart. मेरे हृदय में अद्भुत शांति महसूस किया। Jesus met another man with worry. यीशु एक और व्यक्ति जो क्लेश से साथ मिला। Matthew 6:34 says, और मत्ती 6:34 में लिखा है, every day will dawn upon you with worry and sorrow. प्रत्येक दिन वो दुख और कष्ट के साथ मुझे पड़ता था। Yesterday we heard much about it. कल हमने इसके विषय में सुना। Every day will bring evil and sorrow upon us. प्रत्येक दिन दुख और मुसीबत ले आएगा। There was a man called Simon, a fisherman. एक शिमोन नाम एक मछुआरा था। The whole night he tried to catch fish, not even one fish he could get. पूरी रात उसने मेहनत किया लेकिन एक भी मछली पकड़ने नहीं His पाया। heart was full of sorrow. उसका हृदय दुख से परिपूर्ण How था। am I going to face my wife and children today? मैं किस प्रकार अपनी पत्नी और बच्चों का सामना करूंगा आज? What will I purchase for them? मैं उनके लिए क्या खरीद पाऊंगा? No fish, कोई भी मछली नहीं, no money. कोई भी पैसा He नहीं। was just cleaning his net. वो ऐसे ही अपना जाल को धो रहा था And Jesus came. और यीशु आया। Jesus asked him, यीशु ने पूछा, come, आओ let us go for fishing. आओ मछली पकड़ने के लिए चलें। The Bible says बाइबल बताती in है 1 Samuel 16 and verse 7, पहला सैमुएल 16 के 7वीं पद man में, looks at the face, मनुष्य चेहरे को but देखता है God looks at the heart. लेकिन परमेश्वर हृदय को He देखता है। looked into the sorrowful heart of this man. उसने इस व्यक्ति के दुखमय हृदय को देखा। Simon said, शिमोन ने कहा, Lord, the whole night we toiled. प्रभु सारी रात हमने मेहनत We किया didn't get anything. लेकिन हमको कुछ नहीं मिला, Anyway, I will obey your word and come. लेकिन तेरे वचन का पालन करके मैं The चलूंगा। Bible says, बाइबल बताती है Luke chapter 6 verses 4 to 6, लूका 6 का 4 से 6 पद तक, Jesus took him into the deep. यीशु ने गहराई में उसको ले He गया said, now cast your net. और उसने कहा अब जाल को डाल। Oh, he could get a tremendous catch of fishes. बहुत आयत का मछलियों को उसने घेर लिया And he was thrilled. और वो बहुत ही खुश हो गया। My brother, मेरे भाई, my sister, मेरे बहन, probably today you are worrying about your financial needs. संभव है कि आज आपकी आर्थिक अवस्था के बारे में आप चिंतित हैं। After I came to Jesus, यीशु के पास आने के बाद I began to study for my degree again. मैं अपने डिग्री के लिए फिर से पढ़ने लग गया। He helped me. उसने मुझे मदद I किया। passed my degree. मैं डिग्री में उत्तीर्ण हो Then I गया began to search for jobs. और नौकरी के तलाश में लग गया। Oh, from morning till night I'll be searching for jobs. सुबह से रात तक मैं नौकरी के खोज में था। My father was working in a school. मेरे पिताजी एक स्कूल में काम कर रहे The थे। headmaster of the school was a compassionate man. उस स्कूल के प्रधान अध्यापक एक सहानुभूति He व्यक्ति gave था। me a teacher's job for just 89 rupees. उसने 89 रुपीस लिए एक नौकरी मुझे दिया Temporary job. और एक कम समय का नौकरी। I entered it with a joyful heart. मैं उस नौकरी में खुशी के साथ उठा लिया And I began to pray. और मैं प्रार्थना करने लग गया, Lord, give me a better job. प्रभु एक श्रेष्ठ नौकरी दे। I wrote all the competitive examinations. मैंने सारे प्रतियोगिता के इम्तिहान लिखे And when this job ended, और जब ये नौकरी समाप्त हो गया, I got a job in the State Bank of India. स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में मुझे नौकरी मिला Just through the competitive examination. और उस इम्तिहान को लिखकर उत्तीर्ण होने के कारण And I joined it as a clerk. और वहां पर एक क्लार्क के पोस्ट में मैं दाखिल हुआ। I began to give God 9 rupees a month. प्रति महीने मैं प्रभु को 9 रुपए देता था Then 13 rupees a month. और फिर 13 रुपए। One day I told God, एक दिन मैंने प्रभु से कहा, Lord, give me a better job. प्रभु मुझे अच्छा नौकरी दे। The more I earn, the more you will get as tithe. जितना अधिक मैं कमाऊंगा उतना अधिक तुझे दशवांश मिलेगा। Suddenly, एकदम there was a new rule. एक नया नियम आ गया। In the normal way, I would get my promotion only after 20 years. सामान्य तौर से मुझे प्रमोशन 20 साल के बाद ही मिलेगा, They brought a fast track promotion method. लेकिन उन्होंने जल्दी से प्रमोशन का एक योजना लाई To get promotion within 5 years. और 5 साल के अंदर प्रमोशन मिलने के लिए। And when they examined me, I was found fit for everything. जब उन्होंने मुझे परखा तो सब प्रकार से मैं योग्य पाया गया Overnight, I was promoted as an officer. और रातों रात में अफसर के पद पे मेरा उत्तीर्ण हुआ On and on I went. और आगे बढ़ते गया। I never missed a single promotion. मैंने एक भी प्रमोशन नहीं चूका Finally, 700 officers were under my control. और अंत में 700 अफसर लोग मेरे अधीनता में थे। My young people, मेरे जवान लोगों, yesterday was your night. कल आपका रात था।
My son, God's servant, prayed for all the young people last night. मेरा बेटा परमेश्वर के दास ने प्रत्येक जवानों के लिए प्रार्थना किया। God will take care of all of you in a marvelous way. परमेश्वर आप में से हर एक को अद्भुत तरीके से संभालेगा। Many shall become IAS officers. आप में से अनेक IAS अफसर बनेंगे। Many shall become IPS officers. आप में से अनेक IPS अफसर बनेंगे। All of you shall come up. आप सबका बढ़ोतरी होगा। But rely on God. लेकिन परमेश्वर पर भरोसा रखें। Don't be worried. आप चिंतित ना हो। Just because you don't get a job or Is- don't get selected in IAS, don't commit suicide. इसलिए कि आपको नौकरी नहीं मिला, ये IAS में आपको सिलेक्ट नहीं हुआ, आप आत्महत्या ना करें। You need not hang yourself. आप अपने आप को फांसी न चढ़ाएं। Jesus Christ allowed himself to be hung up on the cross for you. यीशु ख्रिस्त ने कलवरी क्रूस पर आपके लिए मारा गया। He can lift you up. वो आपको उठा सकता है। He will lift you up. वो आपको उठाएगा। Don't be sorrowful. आप दुखी ना हो। Tonight, आज रात you can throw a challenge to God. आप परमेश्वर के सामने एक चुनौती रख सकते Lord, हैं। I'm giving my heart to you. परमेश्वर, मैं अपना हृदय तुझे My देता whole हूं। life to you. मेरा संपूर्ण जीवन तेरे Forgive लिए। my sins. मेरे पापों को क्षमा कर। Let there be no barrier between you and me. आपके और मेरे बीच में कोई भी दरार न हो। Make me your son, make me your daughter. प्रभु मुझे अपना बेटा या बेटी बना ले। And Lord, give me a job. प्रभु मुझे एक नौकरी दे। Give me my heart's desires. प्रभु हृदय की इच्छाओं को पूरा कर। Psalm 37 verse 4 says, भजन संहिता 37 के 4 में लिखा है, Delight yourself in the Lord. परमेश्वर में तुम आनंदित हो जाओ He will grant the desires of your heart. और वो तुम्हें अपने हृदय की मनोरथों को पूरा करेगा। Don't be worried. आप चिंतित ना हो। Do you have sorrow in your heart क्या आपके हृदय में किसी भी प्रकार का दुख है? because of unemployment? बेरोजगारी के कारण दुखी है, Or because you don't get a nice job? या इसलिए कि आपको एक अच्छा नौकरी नहीं मिला No nice home? और अच्छा घर नहीं, Not a good married life? एक अच्छा पारिवारिक जीवन नहीं, Whatever it be, कुछ भी क्यों ना हो, let not sorrow kill you. आपको दुख मारने ना दे। Tonight the Lord Jesus Christ wants to kill your sorrow. आज रात प्रभु यीशु मसीह आपके दुख को मिटाना He चाहता है। wants to give you joy. वो आपको आनंद प्रदान करना चाहता My है। precious brothers and sisters, मेरे अजीज भाइयों बहनों, the height of sorrow can be seen only in a funeral home. और दुख का चरम सीमा हम मौत के घरों में देख सकते हैं। Yes, bereavement at any age is terrible. और किसी भी उम्र में मृत्यु बड़ा भयानक और दुखी है। Death at any age is terrible. और किसी भी उम्र में मृत्यु बड़ा भयानक है। If you read John chapter 11, अगर यूहन्ना 11वीं अध्याय आप पढ़ेंगे 33 to 35, 33वीं पद से you'll 35 find पद, over there a family in sorrow. और एक परिवार को दुख में देखते हैं 3 orphans, और 3 अनाथ, Martha, Mary and Lazarus lived together. मार्था, मरियम और लाजर एक साथ जीवन बिताते थे। Suddenly Lazarus died. एकदम अचानक लाजर का मृत्यु हो Martha गया। and Mary cried out for him. मार्था, मरियम उसके लिए रोने लगे। Jesus loved all the three. यीशु तीनों से प्यार करता They था sent word to him. और उसके लिए उन्होंने खबर Lord, the भेजा, one whom you love is sick unto death. प्रभु जिससे तू प्यार करता है वो मृत्यु तक बीमार है, Please come. कृपया तू आ जा। But Jesus came only after 4 full days. लेकिन यीशु मसीह 4 दिन के पश्चात ही Both the आए। sisters said और बहनों ने क्या कहा? in John 11:21, यूहन्ना 11 के 21 में, John 11:32, यूहन्ना 11 के 32 में, my brother would not have died, Lord, if you had come on time. प्रभु अगर तू समय पर आता तो मेरा भाई का मृत्यु नहीं होता। Their hearts were broken. उनका हृदय टूट गया, They began to cry. वो रोने लग गए। The whole people in the village began to cry. पूरे गांव निवासी रोने लगे। And the Bible says, बाइबल बताती है when Jesus saw them cry, यीशु ने उनको रोते हुए he देखा began to grow with sorrow in his heart. और वो आत्मा में खेदित होकर He कहराने began लग to गया groan and groan. और वो अंदर खेदित होकर कहराने लग गया And he sat down. और वो बैठ गया। And the Bible says और बाइबल बताती है in John 11:35, यूहन्ना 11 के 35 में Jesus wept. यीशु रोने लग गया। Probably he mourned. हो सकता है वो विलाप कर रहा Probably था, he lamented. हो सकता है वो विलाप करने लगा। Lazarus, लाजर, where have you gone? तू कहां चला गया? Lazarus, लाजर, where have you तू gone? कहां चला गया? Probably he mourned. हो सकता है उसने विलाप The किया। Bible says बाइबल बताती in है Hebrews 5 and verse 7, इब्रानी 5 के 7 में Jesus used to go to lonely places यीशु मसीह एकांत जगह में जाते थे and he will cry
with a loud voice and pray. और जोर के पुकार से वो रोकर प्रार्थना He करता would था shed much tears and pray. और बहुत आंसू बहा बहा कर उसने प्रार्थना But he किया openly cried, और उसने खुले आशा unable to रोआ। bear the sorrow. वो दुख को सह नहीं सकता He था began to cry, वो रोने लग गया Lazarus, लाजर Lazarus, लाजर my friend, मेरा मित्र where have you gone? तू कहाँ चला गया। That is the love of Jesus. यही यीशु का प्यार है। But he raised Lazarus from the dead लेकिन लाजर को मृतकों में से जिलाया and drove away their sorrow. और उनके दुख विलाप को हटा दिया। He gave them joy. उसने उनको आनंद प्रदान किया। On the 2nd January 1990, 2 जनवरी 2 को 1990 में I went into my prayer room regularly to pray. मैं अपने प्रार्थना कमरे में बराबर प्रार्थना के लिए जाया करता था And I never came out. और उस कमरे से निकल नहीं आया। Several hours passed. अनेक घंटा बीत गया। My wife peeped in. मेरे पत्नी देखी, She would found me lying on the ground. उसने देखा मैं फर्श पर लेटा हुआ हूँ I was foaming all the way. और मेरे अंदर से झाग निकल रहा था। She got a shock. उसको एकदम शौक हुआ। A doctor came in to see me. डॉक्टर आया मुझे जांचने के लिए। He said, उसने कहा, oh, he's gone. Rush him to the hospital. इनका जीवन समाप्त हो गया, जल्दी से अस्पताल They packed पहुंचाओ। me off to a hospital. उन्होंने अस्पताल पहुंचाया The hospital was full of experts. और अस्पताल में बड़े विशेषज्ञ लोग थे। They knew me and they loved me. वो मुझे जानते थे, मुझसे प्यार The करते थे doctors themselves put me in a carrier and carried me. और डॉक्टरों ने खुद मुझे तकिया पर लिटाकर बिस्तर में लिटाकर ले गए। They hurried the stretcher. वो जल्दी से मुझे ले गए। Finally, they tested me. अंत में उन्होंने मेरे शरीर को फिर से जांचा Told my waiting wife, और मेरे प्रिय जो साथी जो he पत्नी रुक is रही थी dead. और उसको तो मर He is गया, dead and gone. वो तो मर के चले गए। My wife began to cry. मेरी पत्नी रोने लग गई, Everyone began to cry. सब लोग रोने लग गए। He is dead already. 1.5 hours earlier, he is dead. वो तो 1.5 घंटे पहले मर चुके हैं। Nobody knew what to do. किसी को मालूम नहीं क्या करना है। The doctors also cried. डॉक्टर लोग भी रोने लगे। There was a nurse. एक नर्स थी, She looked at my face. उसने मेरे चेहरे को देखा, She screamed, उसने चिल्लाया, oh, this is brother Dinakaran. ये तो भाई दिनकरन है। She ran to the telephone, वो जल्दी से टेलीफोन गए, called her dear pastor, उसके अजीज पासबान and को said, बुलाया। Pastor, उसने कहा, पासबान, brother Dinakaran is dead. भाई दिनकरन का मृत्यु हो गया। He said, what are you talking? उन्होंने कहा, आप क्या बोल रहे He is हैं? lying in our emergency ward dead. और देखिए इमरजेंसी वार्ड में मरे हुए पड़ा है। He said, उसने कहा, I will never allow him to die. मैं उसको मरने के लिए अनुमति नहीं We दूंगा। all need him for the church. हमें कलीसिया के लिए उनको जरूरी है। Right now I am kneeling down. अभी मैं घुटनों के बल हो रहा हूँ, Right now I am going to cry. अभी मैं रोने जा रहा हूँ। Within 15 minutes, 15 मिनट के अंदर God heard his prayer. परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को सुना, Send back my life. मेरे जीवन को वापस दे My दिया। heart began to tick again. मेरे हृदय फिर से धड़कन शुरू हो Everybody गया। began to laugh. सब लोग देखने लगे, There was great joy. बड़ा ही खुशी था। Where there was sorrow, और जहां पर दुख था there was joy. वहां पर आनंद आ God गया। can do it for you tonight. आज रात प्रभु आपके लिए कर सकता है। Probably you have a health problem. संभव है कि स्वास्थ्य का समस्या आपके सामने, Probably you have a home where it is broken. आपका घर का अवस्था टूटा हुआ होगा। In every way you are sorrowful. प्रत्येक विषय में आप दुखी हैं। Cheer up. आप आनंदित हो Cheer जाए, up, my brother. आनंदित हो जाए मेरे God भाई। can heal your heart. प्रभु आपके हृदय को चंगाई दे सकता है। 14 years ago it happened. 14 साल पहले ये हुआ। My heart is still ticking well by God's power. मेरा हृदय अभी भी अच्छी तरह से चल रहा है परमेश्वर के सामर्थ्य Your से। heart can be repaired tonight. आज रात आपका हृदय फिर से पुनर्स्थापित हो Cheer सकता up है। tonight. आनंद मनाए आज God रात। can drive away your sorrow परमेश्वर आपके दुख को भगा सकता है, because He is a great God. क्योंकि वो एक महान परमेश्वर है। He is greater than your sorrow. आपके दुख से भी वो बढ़कर और महान है। He is greater than all your sorrow. आपके तमाम दुख से भी वो महान है। Tonight you are not here by accident. आज रात यहाँ पर अचानक आप नहीं आए। As a loving heavenly Father, He has brought you here to wipe away your sorrow. एक प्रेमी स्वर्गीय पिता आपके आंसू पोंछने के लिए आपको यहाँ पर लेके आया है। Death is terrible. मृत्यु भयानक है Bereavement is terrible. और अजीजों का मरना शोक But की बात। Songs of Solomon chapter 8 and verse 6 says, लेकिन श्रेष्ठ गीत 8वीं अध्याय 6ठी पद में लिखा है, love is as strong as death. मृत्यु प्रेम के बराबर है। Be of good cheer. आनंद मनाएं। Some years ago I visited Pakistan.
कुछ साल पहले मैं पाकिस्तान गया। There they sang a beautiful Punjabi song about God's power, as said in Psalm 9. भजन संहिता 9 में परमेश्वर के सामर्थ्य के विषय में हमने सुंदर गीत गाया। I loved it. मैं उस गीत से बड़ा पसंद I किया। translated it into Hindi. मैंने उस गीत को हिंदी में अनुवाद किया। I'll sing one stanza. एक पद आपके लिए गाऊंगा। कायम यहोवा तो है, कायम है तख्त तेरा, कायम यहोवा तो है, कायम है तख्त तेरा, फैलाया जग में तूने, फैलाया जग में तूने अपना ये राज सारा, अपना ये राज सारा, कायम यहोवा तो है, कायम है तख्त तेरा, दुखियारों के लिए तू सबसे बड़ा सहारा, दुखियारों के लिए तू सबसे बड़ा सहारा, सबसे बड़ा सहारा, दर्दों से जो परेशान, दर्दों से जो परेशान, तूने उन्हें पुकारा, तूने उन्हें पुकारा, कायम यहोवा तो है, कायम है तख्त तेरा, फैलाया जग में तूने, फैलाया जग में तूने अपना ये राज सारा, अपना ये राज सारा, कायम यहोवा तो है, कायम है तख्त तेरा, कायम है तख्त तेरा, कायम है तख्त तेरा। Hallelujah. Hallelujah. हालेलुया। God is greater than our sorrow. परमेश्वर अनुग्रहकारी हमारे दुख के बीच में। God is greater. परमेश्वर महान है। Tonight He has brought you here to wipe away your tears. आज रात वो आपको इसलिए लाया ताकि आपको छुटकारा प्रदान करें। Not only that, यही नहीं, He wants to give you His consolation and comfort at all times. वो चाहता है कि निरंतर वो आपको आपका अपना आश्वासन और तसल्ली दे। If you read Isaiah chapter 61 and verse 2, यशायाह 61वें अध्याय के दूसरे पद में the Bible says, बाइबल बताती है Jesus came into the world to wipe away every tear and also to comfort all who mourn. यीशु मसीह इस संसार में इसलिए आया ताकि हर एक आंसू को पोंछे और हर एक दुखी को तसल्ली प्रदान To करे, comfort all who mourn. कि हर एक जो विलाप करे उनको तसल्ली दे। Isaiah 25 and verse 8 says, यशायाह 25 के 8वीं पद में लिखा to है wipe away the tears from all faces. कि प्रत्येक चेहरों से हर एक आंसू को वो पोंछ डाले। Tonight He is watching you. आज रात वो चाहता है How your heart is broken. आपके हृदय कैसे टूटा हुआ, How you are mourning. आप कैसे विलाप कर रहे He हैं। says, I must comfort this boy. और यीशु कहता है मैं इनको I तसल्ली must दूं, comfort that gentleman. मैं उस श्रीमान को तसल्ली I दूं, must comfort that little girl. मैं उस छोटी बच्ची को तसल्ली दूं। Watching.
वो आपको He is देखता है, watching. वो देखता है, He is watching your tears now. आपके आंसू को भी देखता As है, tears are rolling down your cheeks, आपके चेहरे पर आंसू जब टपक रहा है, God is appearing by your side. परमेश्वर आपके नजदीक खड़ा है, Because you come in search of Him. क्योंकि आप उसके खोज में आए He हैं। says, every one of these tears I must wipe off. वो कहता है प्रत्येक आंसू को मुझे पोंछ डालना है। When? Tonight. कब? वो आज रात को। So He said, और वो कहता है, let me walk through the grief and sorrow of my people. मैं अपने बच्चों के दुख और मुसीबत के बीच से चलूंगा। The Bible says in Isaiah 53 and verse 3, बाइबल बताती है यशायाह 53 के 3 में, Jesus Christ was a man of sorrows, acquainted with grief. यीशु मसीह दुख भोग का व्यक्ति है और वो शोक से गुजरा हुआ व्यक्ति है। Isaiah 53:4 says, यशायाह 53 के 4 पद में He लिखा, bore all our grief उसने हमारे सारे दुखों को सह लिया, and carried away all our sorrow. उसने हमारे तमाम दुखों को उठा लिया, He bore all our grief हमारे तमाम दुखों को उठा लिया and took away all our sorrows upon Himself. और अपने दुखों को अपने ऊपर उसने उठा लिया। Several years ago, this happened in South Africa. अनेक साल पहले दक्षिण अफ्रीका की बात है। A 16-year-old boy got into an accident एक 16 साल का लड़का दुर्घटना में ग्रस्त हो गया and he lost his power of speech. और उसने अपना बोली खो बैठा। He was recovering in a hospital. अस्पताल में वो उसका इलाज हो रहा था। Every day his father would come. प्रत्येक दिन उसके पिता आते थे, He'll talk to him for 4 hours and 5 hours. 4-5 घंटे निरंतर उससे बोलते थे And he will ask his son, और बेटे से बोलता था, Son, can you talk back? बेटा क्या तो कुछ उत्तर दे Can you सकता say something? और क्या कुछ बोलेगा? No, the boy could only listen, he could not talk. नहीं, बेटा कुछ नहीं बोल सकता, वो बोल नहीं सकता था। Every day this would happen. प्रत्येक दिन ये होता था। One day, एक दिन he talked and talked for 4 hours and 5 hours. पिताजी निरंतर अपने बेटे से 4-5 घंटे लगातार बातचीत करते And he गए stood up और खड़ा हो गया and he said, Son, और उसने कहा, बेटा I'm going home, मैं घर जा रहा हूँ but I'll come back tomorrow. लेकिन कल मैं वापस आऊंगा। Suddenly he screamed. और एकदम वो He चिल्लाने screamed लगा, with pain. उसने दर्द से चिल्लाया, His heart was really broken. उसका हृदय टूट गया था। He caught hold of his heart, उसने अपने हृदय को थाम लिया, screamed, चिल्लाने लग It's गया, paining, वो दर्द हो रहा it's है, paining. दर्द हो रहा है। And the young boy stood up from his cot. वो जवान लड़का अपने खाट से उठ He गया wanted to call the doctors, और डॉक्टरों को बुलाने लग but his गया, voice was not coming. लेकिन उसकी आवाज नहीं But आ he रहा saw था। his father dying before his eyes. उसने पिता को आपके सामने मरते हुए He देखा tried his level best, और उसने बहुत भरसक and प्रयास his किया। voice came back. उसका आवाज वापस He आया cried out, और उसने चिल्लाया, Doctor! डॉक्टर, Doctor! डॉक्टर, Daddy is dying. पिताजी मर रहे हैं। He got back his voice, उसकी आवाज वापस मिल गया, but his father was dead and gone. लेकिन उसके पिताजी मर के गुजर गए। This is what happened on the cross. और यही बात कलवरी क्रूस पर हुआ। Jesus took all our grief and sorrow, यीशु मसीह ने हमारे तमाम दुखों को उठा लिया laid down his life. और अपना जीवन उंडेल दिया। Today, आज he understands your sorrow. वो आपके दुख को समझता है। On the cross, he cried out, उस कलवरी क्रूस पर वो पुकारा, My God, मेरा my परमेश्वर, God, मेरा परमेश्वर, why hast thou forsaken me? तूने मुझे क्यों त्याग दिया? The sorrows and griefs of the whole world is coming upon me. पूरे संसार के दुख और क्लेश मेरे ऊपर आ रहा है। My brother, मेरे भाई, he understands your sorrow. वो आपके दुख को समझता है, He understands your grief वो आपके दुख को समझता है and has given a lasting solution to your sorrow. और आपके दुख के लिए एक बड़ा परिणाम दिया है। In Isaiah 35 and verse 10, यशायाह 35 के 10 में he says, वो कहता है, I'll give you everlasting joy. मैं अनंत काल का आनंद तुम्हें देता हूँ, Gladness and joy shall return to you. आनंद और खुशी तुम में वापस आएगा, Your sorrow and sighing shall flee away. तुम्हारा आहे भरना और दुख हट जाएगी। In Isaiah 61:3 he says, यशायाह 61 के 3 में कहता I'll है, give you oil of joy वो आनंद का तेल देगा instead of mourning. और विलाप की जगह। That is the Holy Spirit. यही पवित्र आत्मा है। The Bible says in Acts 10:38, बाइबल कहती है प्रेरितों के काम 10 के God 38 में, anointed Jesus of Nazareth with Holy Ghost and power. परमेश्वर ने यीशु नासरी को पवित्र आत्मा और अभिषेक से उंडेला। When I read that word, जब मैंने वो वचन पढ़ा, I said, Lord, मैंने कहा, प्रभु, if God's Son
should receive this Holy Spirit and power, how much more I should have. अगर परमेश्वर के पुत्र को पवित्र आत्मा और सामर्थ पाना है तो मुझे कितना अधिक चाहिए। I began to cry. मैं रोने लग गया। 7 years I cried. अनेक साल मैं रोते गया। And on the 10th October 62, और 10 अक्टूबर 1962 में when we were having our family prayers, जब हम अपने पारिवारिक प्रार्थना में suddenly थे, the whole room was filled with God's mighty Holy Spirit. वो पूरा कमरा परमेश्वर के पवित्र आत्मा से भर And गया। I saw Jesus. और मैंने यीशु को देखा। I saw him. मैंने उसको देखा। I saw him. मैंने उसको देखा। I saw him just for a fleeting second. और मैंने कुछ क्षणों के लिए उसको देखा। I saw him for 3 full hours. और 3 घंटों के लिए मैंने He देखा। talked to me for 3 full hours. उसने 3 घंटों तक मुझसे बातचीत की। I saw him. मैंने उसको देखा। I heard his voice. मैंने उसकी वाणी को सुना। He blessed me. उसने मुझे आशीष He दिया। talked and talked and talked for 3 full hours. 3 घंटे लगातार उसने मुझसे बातचीत किया। At the end of the 3rd hour, 3 घंटे के समाप्ति पर came nearer and nearer. और वो नजदीक आया। He said these immortal words. और उसने कहा इस नश्वरगुर संसार में, My son, मेरा बेटा, this world has heard about my love and compassion, इस संसार ने मेरे प्रेम और सहानुभूति के बारे but में it सुना, has never seen it in anybody's life. लेकिन किसी के जीवन में उन्होंने नहीं देखा। I am giving you my spirit of love and compassion. मैं अपना प्रेम और सहानुभूति की आत्मा तुम्हें दे रहा हूं। Every time you see misery, जब कभी तुम क्लेश को देखोगे, every time people come and cry, जब कभी लोग आकर रोएंगे, this spirit of compassion shall move within, तरस की आत्मा से तुम उभर जाओगे, and whatever you ask for them shall be granted. और जो कुछ तुम लोगों के लिए विनती करोगे वो दिया जाएगा। Oh, this changed my life. वो मेरे जीवन को बदल डाला। One side sorrows come, और जहां पर दुख आता the है world brings you tribulation. और दुख संसार क्लेश लाती है, All the time it brings only sorrow to you. और संसार हमेशा दुख पहुंचाती But you है, go and kneel down, लेकिन आप घुटनों के बल and होते you हैं, cry, आप रोते हैं, and the Holy Spirit comes. और पवित्र आत्मा उतर आती है, It comes and fills you, वो आपको भर देता है, and joy unspeakable comes to you. और अवर्णनीय आनंद से परिपूर्ण हो जाते First हैं। Peter 1:8 says, पहला पत्रस 1:8 में the लिखा Holy है, Spirit brings you joy unspeakable and full of glory. पवित्र आत्मा आपको महिमा और अवर्णन से अपार आनंद देता है। This is the only one way to overcome sorrow. और एकमात्र तरीका है दुख के ऊपर प्रबल होने का, And God wants to give it to everybody. और परमेश्वर हर एक को प्रदान करना चाहता है। Acts 2:17 says, प्रेरितों के काम 2:17 में in the लिखा, last day, अंतिम दिनों में I'll pour out my Holy Spirit upon all flesh. हर प्राणी के ऊपर मैं अपनी आत्मा को ढेलूंगा। Tonight it is God's will that every one of you should receive this mighty Holy Spirit. आज रात ये परमेश्वर की मनसा है कि आप में से प्रत्येक पवित्र आत्मा को पाए। Nobody is an exception. आप में से कोई किसी को भी छूट Upon नहीं। all flesh. प्रत्येक प्राणी पर, Upon all flesh. हर एक प्राणी Upon पर, all men. हर एक पुरुष पर, All women. प्रत्येक स्त्री के All पर, children. प्रत्येक बच्चों के He ऊपर wants to pour out His Holy Spirit upon you, वो अपना पवित्र आत्मा आपके ऊपर उंडेलना चाहता है, so that you can overcome sorrow, इसलिए कि आप दुख के ऊपर जय पाए, live a victorious life. एक जीवन बिताए। Yes, sorrow is painful. जी हाँ, दुख बड़ा क्लेशदायक है। Sorrow breaks your soul, दुख आपके प्राण को खेदित करता है, breaks your spirit. वो आपके आत्मा को But the कुचलती है। Holy Spirit drives away the sorrow. पवित्र आत्मा दुख को भगा देता है। Right now we are going to pray. अभी हम प्रार्थना करने जा रहे I हैं। am going to pray for your broken heart first. मैं आपके टूटे हुए हृदयों के लिए प्रार्थना Then we करूंगा, are going to ask the Holy Spirit to come. उसके बाद हम पवित्र आत्मा को निवेदन Shall we करेंगे। close our eyes now? आइए हम अपने आंखों को बंद Look करें, to God. परमेश्वर की ओर देखें। Tell Him your problems now. आप अपनी समस्या उसके सामने व्यक्त Do you करें। have a problem with sin? क्या पाप से आप एक समस्या निपटा रहे हैं? Tell Him, उससे बोले, I am addicted to sin, Lord. प्रभु मैं पाप की अधीनता में हूँ, I am addicted to drugs, Lord. प्रभु नशीले पदार्थों के I am अधीन में हूँ, addicted to alcohol, Lord. प्रभु शराब के अधीन में हूँ, I have a lying spirit, Lord. प्रभु झूठ बोलने वाली आत्मा I है, have a ferocious nature, Lord. प्रभु एक आक्रोशिक आत्मा मेरे अंदर है। Whatever you want,
को जो कुछ आप चाहते हैं Tell him. उससे बोले, Kneel down and cry out to God. घुटनों के बल होकर उससे पुकारें। Wherever you may be. जहां कहीं आप हैं, Wherever you may be. जहां कहीं आप हैं, Wherever you may be. जहां कहीं आप हैं, Close your eyes. आंखों को बंद करें Remember, he is standing next to you. और उसके नजदीकी को स्मरण करें। He wants to heal your broken heart. वो आपके टूटे हुए हृदय को चंगाई देना He wants चाहता to take away every sorrow from your है। वो heart. आपके हृदय से दुख को मिटाना चाहता है। He wants to wipe away every tear from your face right now. आपके चेहरे से प्रत्येक आंसू को वो पोंछना चाहता है। Who is eligible? कौन इसके लिए योग्य है? Who is eligible? कौन इसके लिए योग्य है? Whose sorrow he is going to wipe away? और किसके दुख और आंसू को Whose पोंछेगा? tears are going to be wiped away? किसके आंसू पोंछे जाएंगे? Every one of you. आप में से प्रत्येक Every one of you is eligible. आप में से प्रत्येक इसके योग्य है, Because Jesus gave his life for everyone. क्योंकि यीशु ने प्रत्येक के लिए अपना जीवन दे दिया। Everyone. He loves everyone. वो आप में से हर एक से प्यार करता है, Everyone. हर एक से प्यार Now करता the है। heavens are open. अभी स्वर्ग खुला है, God's blessings are coming upon you. परमेश्वर के आशीष आपके ऊपर उंडेला जा रहा Joy है instead of sorrow. और आनंद क्लेश के बदले में, Joy instead of grief. और शोक के बदले आनंद He is bringing that to you. वो आपको प्रदान कर रहा है। अभी You get right with God. परमेश्वर के साथ सही हो You जाओ, get right with God. परमेश्वर के साथ मेल मिलाप करो, Open your soul आपके प्राणों को खोले and tell him, और उससे बोले, Lord Jesus, प्रभु यीशु, I am a sinner. मैं I am a तो sinner. मैं तो पापी हूँ, I am a sinful woman. मैं तो पापी स्त्री हूँ, Sinful man. एक पापी पुरुष हूँ। Forgive my sins, O God. मेरे पापों को क्षमा कर, Wash me with your blood. मेरे अपने लहू से मुझे धो दे। Jesus, wash me with your blood. प्रभु अपने लहू से धो दे, Make me clean. मुझे शुद्ध कर, Make me clean. मुझे शुद्ध कर, Make me clean. मुझे शुद्ध कर। I want to get rid of every sorrow. हर एक दुख से मैं जय पाना चाहता हूँ। Wash me, Lord, with your blood. प्रभु अपने लहू से मुझे धो दे। Oh, he will do it right now. जी हाँ, वो अभी वो He करेगा, will do it right now. अभी वो ये काम को He is करेगा। by your side. वो आपके बगल में है। This is your night. ये आज रात आपका This is है, your night. वो आपकी रात है। Some of you are contemplating to commit suicide आप में से कुछ आत्महत्या के बारे में सोच रहे हैं, because life has been cruel to you. क्योंकि जीवन आपके लिए कठोर हो। Some of you want to commit suicide. आप में से कुछ आत्महत्या करने Jesus चाहते हैं। says, No, यीशु कहता नहीं, no, my son, नहीं मेरा no, बेटा, my daughter, नहीं मेरा बेटी, don't commit suicide. आत्महत्या न करो। I want to help you. मैं तुम्हें मदद देना I चाहता want to हूँ, help you. मैं तुम्हें मदद देना चाहता God हूँ। is watching over you. परमेश्वर आपके ऊपर नजर रखता He है, knows all about you. वो आपके बारे में सब कुछ He जानता knows है, your name. वो आपका नाम को He knows जानता your है, problem. वो आपकी समस्या को The जानता Lord है। Jesus tells me, प्रभु यीशु मुझसे there बोलता है, is a man called Reuben. एक व्यक्ति है जिसका नाम है रूबेन। Reuben, रूबेन, you are tired of life. तू जीवन से थक गया, Everybody has been cruel to you. सब लोग तेरे विरुद्ध कठोर हैं, You want to end your life. तू अपना जीवन समाप्त करना चाहता है। Reuben, रूबेन, don't end your life. अपना जीवन खत्म मत करो। Jesus Christ is appearing by your side. यीशु ख्रिस्त आपके बगल में प्रकट हो रहा You है। say, all ways are closed for me. वो आपके जो बंद दरवाजा खोलता है All ways are blocked for me. और वो हमेशा आपके लिए तरस करता है। Tonight, आज रात Jesus Christ is assuring you, Reuben, यीशु ख्रिस्त रूबेन आपको He तसल्ली is going to देता है, open another way for you. आपके लिए एक और मार्ग खोलेगा। Don't commit suicide. आत्महत्या मत करो। I see the mighty power of God coming upon you. परमेश्वर का अद्भुत सामर्थ आपके ऊपर उतरते हुए मैं देखता हूँ। Peace is coming upon you. शांति आपके ऊपर उतर रहा है। God's peace is filling your heart. परमेश्वर का शांति आपके हृदय को भर रहा है। There is another girl by name Ayesha. और एक और लड़की है आयशा नाम की। Ayesha, आयशा, don't lose heart. आपका हृदय दुखी न हो। You say everything is dark around me. आप कहते हैं सब कुछ मेरे इर्द गिर्द I अंधियारा have है। come to the end of the road. मैं तो मार्ग के अंत में आ गई। There is no future. मेरे लिए भविष्य नहीं है। My life is spoiled. मेरा जीवन खराब हो My गया। life is spoiled. मेरा जीवन खराब हो गया। No hope. कोई आशा नहीं। I have not told about my problems to anyone. मैंने किसी को अपना समस्या नहीं बोला है। I want my life to be ended tonight. मैं चाहती हूँ कि मेरा जीवन आज रात समाप्त करूं। Ayesha, आयशा, don't commit suicide. आत्महत्या मत करो। Jesus Christ will send you a young man to give you joy and happiness in this world. यीशु ख्रिस्त आपके जीवन में खुशी और आनंद प्रदान करेगा। God's mighty power is falling परमेश्वर का अद्भुत सामर्थ्य everywhere. हर जगह, Everywhere. हर जगह। He
wants to heal the broken hearted. वो टूटे हुए हृदय को शांत करना चाहता है Everywhere. हर जगह। My precious brother Harish, मेरे अजीज भाई हरीश, and you have gone through lot of losses in life. तू अपने जीवन में बहुत से कष्ट उठाए हैं। That does not mean that you should end your life. इसका मतलब नहीं कि तू अपने जीवन को समाप्त करेगा। Jesus tells you, Harish, यीशु कहता है हरीश, you will get back everything. तू हर एक नुकसान को You will पूरा get चुकाए, back everything. हर एक बात को वापस मिलेगा। Everywhere. हर जगह, Everywhere I see the heavens open. हर जगह मैं स्वर्ग को खुला हुआ देखता हूँ। God's healing power is coming and healing the broken heart. परमेश्वर का चंगाई का सामर्थ टूटे हुए हृदय को ठीक कर रहा है। Everywhere. हर जगह, Everywhere. हर जगह, Everywhere. हर जगह। On my left, मेरे बायों there is a brother who is left to die. और एक भाई है जो मृत्यु के लिए ठहराया गया। Brother, everything has been done to heal you. और सब कुछ किया आपकी चंगाई के लिए। Even now you are dying of cancer. अभी भी आप कैंसर से मृत्यु No की hope शैया for पर- you. आप आशाहीन But हैं। God's mighty power is coming upon you. लेकिन परमेश्वर का अद्भुत सामर्थ आपके ऊपर है। It is not just a disease. ये केवल एक बीमारी नहीं है। You are possessed by evil powers. आप दुष्ट आत्माओं से पीड़ित हैं They are refusing to leave you. और वो आपको छोड़ने के लिए इनकार I करती see है। the light of God shining upon you. परमेश्वर का ज्योति आपके ऊपर मैं देखता हूँ। It is completely rejuvenating your body. वो आपके शरीर को फिर से पुनर्स्थापित करता है Accept your healing. और आपकी चंगाई को प्राप्त करें। Accept your healing. आपकी चंगाई को प्राप्त Don't करें। pray for death. आप मृत्यु के लिए प्रार्थना न करें। God is going to give you new life. परमेश्वर आपको नया जीवन देगा। It's coming. वो आ रहा है, It's coming. वो आ रहा है, It's coming. वो आ रहा है। Who is this Daisy? देसी कौन है? Daisy, देसी, you are a praying person. तू प्रार्थनाशील है। Praying person. तू प्रार्थनाशील You व्यक्ति है। have led so many people to Jesus Christ. तुमने अनेक लोगों को यीशु ख्रिस्त के पास ले आई है। Everybody looks to you for some advice or other. सब लोग तुम्हारे लिए सलाह से मांगते हैं। But Daisy, लेकिन देसी, you are a broken-hearted person today. तू आज एक टूटे हुए हृदय से पाई गई। Oh, you have lost your peace of mind. तूने अपने हृदय की शांति खो बैठा You है। begin to pray, Lord, take me home. तूने प्रार्थना किया कि प्रभु मुझे घर ले जाओ। Nobody wants me here. मुझे किसी की जरूरत नहीं है। No, नहीं, Daisy. देसी, Jesus tells you tonight, यीशु आज रात आपसे बोलता है। He will bless you again. वो फिर से आपको आशीष His देगा। Holy Spirit shall come upon you again. उसका पवित्र आत्मा तुम्हारे ऊपर फिर से उतर You आएगा shall begin to shine for God again. और फिर से तुम प्रभु के लिए प्रकाशमय The होगे। Lord Jesus tells me, प्रभु यीशु मुझे बोलता है, because of terrible disease, भयानक बीमारी के कारण many want to die. मेरी मरने के लिए चाहते हैं। Many want to die. अनेक लोग मरना चाहते हैं। You have come to the meeting all right. तुम इस सभा में जरूर आए But हो, sitting here, लेकिन यहाँ बैठे instead of हुए praying for your healing, चंगाई के लिए प्रार्थना You करने के say, बजाय Lord, आप कह रहे प्रभु let me go home. मुझे घर जाना काफी It's है, enough. काफी हो गया, It's enough. काफी हो गया, It's enough. काफी हो गया। Brother Sardar, ब्रदर सरदार, Sardar, सरदार, you are a Sardar ji. और आप एक सरदार जी हैं। You are praying like that. आप इस प्रकार प्रार्थना कर रहे Accept God's mighty power on your body. हैं। आपके शरीर पर प्रभु का अद्भुत सामर्थ प्राप्त करें। Jesus tells me, यीशु कहता है, He is sending His mighty Holy Spirit upon you. और अद्भुत पवित्र आत्मा आपके ऊपर उंडेल रहा है। Everybody who is sick, हर एक जो बीमार है, everybody who is terminally sick, प्रत्येक जो मृत्यु का He बीमारी is से, sending His mighty power upon you. वो आपका अद्भुत सामर्थ आपके ऊपर उंडेल रहा है। All medicines might have failed. हो सकता है दवाई का असर खत्म हो गया। Jesus Christ shall never fail. यीशु ख्रिस्त कभी भी He नहीं is the हारेगा। creator of your body. वो आपके शरीर का निर्माता है। Right now, अभी His power is coming upon your body. उसका सामर्थ आपके शरीर के ऊपर Sick व्यक्त होगा। body. आपके बीमार शरीर पर। Everybody who is sick now, प्रत्येक जो बीमार है, especially who are terminally ill, विशेष तौर से जो मृत्यु की बीमारी open your mouth. मुंह को खोले, Open your mouth. मुंह को खोले, Open your mouth. मुंह को खोले। Tell Jesus, यीशु से कहे, Lord, I want to live. प्रभु मैं जीना चाहता हूँ, I want to live. प्रभु मैं जीना चाहता हूँ, Heal me. मुझे चंगाई I दे। will serve you. मैं तेरा सेवा करूंगा, I will serve you. मैं तेरा सेवा I करूंगा, will do your service. मैं तेरा सेवा करूंगा। Heal. मुझे चंगाई दे, Heal. चंगाई दे। I see a man whose head has been shaved off for और treatment. मैंने एक व्यक्ति को देखा जिसका बाल का मुंडन है इलाज के लिए। Something is wrong in your head. आपके सिर में कुछ गड़बड़ी है।
God's mighty power is coming upon your head now. परमेश्वर का अद्भुत सामर्थ अभी आपके सिर पर उतर रहा You है say all the time something is reeling in my head. और आप कहेंगे हमेशा मेरे सिर में कुछ भयानक चक्र आ रहा The है। Holy Spirit is coming upon you. पवित्र आत्मा आपके ऊपर उतर आ रहा है। God is healing you, my brother. परमेश्वर भाई आपको भी चंगाई दे रहा है Accept your healing. और आपके चंगाई को प्राप्त करें। Sister Lalita, बहन ललिता, you are praying all the time. आप हमेशा प्रार्थना कर रहे God, हैं। demons all the time troubling my home. प्रभु दुष्ट आत्माएं मेरे घर को हमेशा सता रहे हैं। Enough, Lord, enough. प्रभु काफी हो गया, काफी हो गया। Otherwise, I'll have to end my life. मुझे अपना जीवन समाप्त करना God पड़ेगा। is delivering you, Sister Lalita. बहन ललिता, प्रभु आपको छुटकारा दे रहा His है। mighty power is coming upon you. उसका अद्भुत सामर्थ आपके ऊपर आ रहा है। Those evil powers in your home are broken. आपके घर के ऊपर दुष्ट आत्माएं छोड़ दिया जा रहा है। Everywhere. हर जगह, Everywhere. प्रत्येक जगह Jesus पर Christ is healing you. यीशु ख्रिस्त आपको चंगाई दे रहा है I see him very busy healing the people. और मैं उसका अद्भुत चंगाई देख रहा हूँ। Tell him. उसको बोले, Tell him. उससे बोले, Lord Jesus, प्रभु यीशु, I am sitting here. मैं यहाँ बैठा हूँ, Or I am kneeling here. मैं यहाँ पर Or आया I am हूँ, standing here. मैं यहाँ पर खड़ा हूँ। Don't go without touching me. प्रभु मुझे छुड़ा बगैर मत I जाए। don't want to die. प्रभु मैं मरना नहीं I don't चाहता। want to commit suicide. प्रभु मैं आत्महत्या नहीं I करना want to चाहता। live a happy life. मैं एक खुशी का जीवन बिताना I want to चाहता हूँ। have a joyful life. प्रभु एक आनंदमय जीवन जीना चाहता हूँ। Lord, touch me. प्रभु मुझे छुए, Touch me. मुझे छुए, Touch me. मुझे छुए, Touch me now. अभी मुझे छुए, Touch me now. अभी छुए, Touch me now. अभी मुझे स्पर्श करें। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Everywhere Jesus Christ is moving. प्रत्येक जगह यीशु मसीह ला रहा है। 2000 years ago, 2000 साल पहले when the eventide came, जब शाम आया, they brought unto him the sick and the suffering, बीमार और खेदित लोगों को प्रभु के पास ले आए। the demon possessed. दुष्ट आत्मा से पीड़ित लोगों Bible को says, बाइबल बताती है, laid his hands on every one of them and healed them. उसने प्रत्येक के छूकर उनको चंगाई दिया। Everyone. प्रत्येक को, Everyone. प्रत्येक को, Everyone. हर एक को। Jesus Christ is the same yesterday, today and forever. यीशु ख्रिस्त आज, कल और युगानुयुग एक सा है। He is doing it again. वो फिर से कर रहा है, Doing it again. वो फिर से कर रहा है। Tell him, Lord, उससे कहे, lay प्रभु your hands upon me. अपना हाथ मेरे ऊपर रख दे, Bless me. मुझे आशीष Only दे, then you can go. तभी आप जा सकते हैं। Bless me. प्रभु मुझे आशीष Bless दे, me. मुझे आशीष No दे। suicide, Lord, bless me. जो कहते हैं प्रभु मुझे आशीष दे, No devil, Lord, bless me. प्रभु मुझे फिर से आशीष दे। No sickness, Lord, bless me. ओ कोई भी बीमारी नहीं, प्रभु आशीष दे। No poverty, Lord, bless me. कंगालपन नहीं, प्रभु आशीष दे। Oh, he is blessing. ओ वो आशीष He दे is रहा, blessing. वो आशीष He दे is रहा, blessing. वो आशीष दे Right रहा। now, I see him laying his hands upon the young people, अभी मैं देख रहा हूँ कि जवानों को वो छू रहा है young children. और जवान बच्चे, He is healing them, वो आपको चंगाई दे setting रहा है, them free. वो आपको आजाद कर रहा है। Hallelujah. हालेलुया। You spirit of blindness, तू अंधापन की come आत्मा out in Jesus' name. यीशु के नाम में निकल जा। You spirit of deafness, और तू बहरापन की आत्मा dumbness, और बहरापन की आत्मा, come out. गूंगापन की In आत्मा निकल Jesus' जा name. यीशु के नाम में। I torment you. और तुझे मैं सताता हूँ, In Jesus' name, I torment you. यीशु के नाम में मैं तुझे सताता हूँ। You spirit of sickness, तू बीमारी की आत्मा, you spirit of suicide, तू आत्महत्या की आत्मा, come out in Jesus' name. यीशु के नाम में निकल जा, Come out in Jesus' name. यीशु के नाम में निकल जा। Lord Jesus, प्रभु यीशु, I compel them to come out. मैं उनको विवश करता हूँ निकल जाने के I लिए। torment every evil spirit to come out. मैं दुष्ट आत्माओं को सताता हूँ कि वो निकल जाए। I compel every witchcraft spirit to come out. जादू टोना की आत्मा को निकलने का हुक्म देता हूँ। Not even one more second they can stay in that home or the body. एक और क्षण उस घर में या शरीर में वो टिकने नहीं पाएंगे। Come out, you devil. निकल जा तू शैतान, Go to hellfire. तू नरक के आग में चले In जा। the name of my Father Jesus. मेरे पिता यीशु के नाम में, In the name of my Lord Jesus. मेरे प्रभु यीशु के In the नाम name में, of our King Jesus. हमारा राजा यीशु के नाम I में, command
command these things to happen. मैं हुक्म देता हूँ कि ये बातें हो जाए। Lord Jesus, you have said, प्रभु यीशु मसीह तूने कहा, my son, whatever you say, you will have. मेरा बेटा जो कुछ तू कहेगा वो मिलेगा। I say unto everybody in this place, प्रभु इस जगह पर हर एक को मैं बोलता हूँ, every brother, प्रत्येक भाई every से, sister, प्रत्येक बहन से, every father, प्रत्येक पिता से, every mother, प्रत्येक माता every से, young man, प्रत्येक जवान भाई every से, young girl, जवान बहन every से, little child, प्रत्येक बच्चे से receive the eternal life of God. अनंत जीवन परमेश्वर का प्राप्त करें, Receive the eternal joy of God. परमेश्वर का अनंत आनंद प्राप्त करें, Receive the eternal Holy Spirit. अनंत पवित्र आत्मा प्राप्त करें, Receive deliverance from God. परमेश्वर से छुटकारा प्राप्त करें। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Only rejoice now. अभी आनंद मनाएं, Only rejoice now. आप केवल आनंद Only मनाएं, thank Him. उसको धन्यवाद Only दें, thank Him. धन्यवाद दें। Open your mouth. आपके मुंह को Open खोलें, your heart. आपके हृदय को And खोलें, thank Him. उसको धन्यवाद दें। Thank you, Lord. धन्यवाद प्रभु, Thank you, Lord. धन्यवाद प्रभु, You granted my petition. तूने मेरे अर्जी को You पूरा किया, granted my prayer request, Lord. मेरे प्रार्थना का निवेदन पूरा किया। Thank you, Father. धन्यवाद पिता, Thank you, Lord. धन्यवाद प्रभु। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Shall we say hallelujah? मिलकर हालेलुया बोले। God's blessings are coming upon you. प्रभु का आशीष आपके ऊपर उतर आ रहा है। धन्यवाद धन्यवाद प्रभु, प्रभु, धन्यवाद प्रभु धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु. धन्यवाद प्रभु। Hallelujah. हालेलुया। Now God is willing to pour down His Holy Spirit upon you. परमेश्वर अपना पवित्र आत्मा आपके ऊपर उड़ेल रहा है। It is He who promised, वही उसने वायदा किया, I will give you the oil of joy instead of mourning. और विलाप के जगह में आनंद का तेल तुम्हें दूंगा। Now we are going to pray for the Holy Spirit to come. अभी हम प्रार्थना करेंगे कि पवित्र आत्मा उतर आए, Nobody is an exception. और किसी को भी छूट नहीं। He is going to anoint everybody. वो प्रत्येक को अभिषेक करेगा, Everybody. हर एक को। Today the Holy Spirit will open up your eyes. आज पवित्र आत्मा आपके आंखों को खोल देता है, He will open your spiritual eye. वो आपके आत्मिक आंखों को खोलेगा। Many shall see Jesus. अनेक लोग यीशु को देखेंगे, Many shall see Jesus. अनेक लोग यीशु को Many shall देखेंगे, see Jesus. अनेक लोग यीशु को देखेंगे। My brother Ebenezer, मेरे भाई you अबनेज़र, are praying, I want to see Jesus. आप प्रार्थना कर रहे, मैं यीशु को देखना My चाहता sister हूँ। Lily, मेरे सिस्टर लिवी, you are saying, I want to see तू Jesus. प्रार्थना कर रही है, मैं यीशु को देखना I चाहती want हूँ, to see Jesus. मैं यीशु को देखना चाहता हूँ। Hallelujah.